Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 9 for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 9 and week number 9. So in our today's lecture, we are going to start our new topic which is related to the multi-degree of freedom systems. जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, इसी तरह से हम जो है वो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि हाउ बेसिकली जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है उनके अंदर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम किस तरह से काम करता है. एंड फॉर दिस कोर्स दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ सिस्मिक स्ट्रक्चर से रिलेवेंट या डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेवेंट कोई बुक्स अवेलेबल हैं तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी हैव समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. In this course, first of all, we discussed regarding the earthquake, we discussed about the seismology or seismology, how the tectonic plates were generated into this earth basically, and then we discussed about the causes of earthquake, how earthquake appears basically. उसके बाद हमने seismic waves डिस्कस किए. seismic waves की कौन से टाइप्स होती हैं, बॉडी वेव्स हैं या ग्राउंड वेव्स हैं, किस तरह से प्रोपगेट होती हैं, किस तरह से मूव करती हैं. Then we discussed about the ground motions, how ground motions generated these types of waves. And then we discussed about the earthquake parameters, कि what are the basic earthquake parameters जो कि हम consider करते हैं, such as magnitude and intensity of the earthquake, और उसको measure हम किस तरह से करते हैं. Then we discussed about the seismic design limit states, how the design limit states were followed in the construction industry regarding the seismic resistant structures. And then we discussed about the seismic risk analysis. उसके बाद हमने सीजमिसिटी ऑफ पाकिस्तान, हाउ पाकिस्तान इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरोप प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट्स हैं, इंडो एशियन प्लेट्स हैं बेसिकली. तो इनकी वजह से अर्थक्वेक किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अपीयर होते हैं, पाकिस्तान को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है डिफरेंट सीजमिक जोन्स के अंदर, और हमने पाकिस्तान के अंदर जो चंद बड़े अर्थक्वेक्स आए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस की हैं उनको भी हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर सीजमिक फोर्सेस, कि how the seismic forces of the structure of the while analyzing any type of structure हम seismic forces को किस तरह से consider करते हैं. उसके बाद हमने gross seismic response and influence of building configurations, कि building की जो system है structure का, कि frame system है या shell system है, structure की जो assembly है, structure की जो configuration है basically वो किस तरह से response करती है any type of seismic forces को. Then we started our topic on single degree of freedom system. और single degree of freedom system के अंदर हमने एक simple structures just like a one story buildings हमने consider किए, एक tower consider किया water tank का. उसके अंदर हमने देखा, observe किया कि how different types of seismic forces basically are acting on the member, और member के अंदर किस तरह से जो है वो displacement generate होती है. डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो है वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि इन हाउ मेनी वेज और इन हाउ मेनी डायरेक्शंस स्ट्रक्चर जो है वो जब किसी भी फोर्स को फेस करता है. इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स हम बात कर रहे हैं, जो लैटरल फोर्सेस होते हैं अर्थक्वेक की वजह से अपीयर होते हैं, तो स्ट्रक्चर आपका किस तरह से या कितने वेज के अंदर वो फ्रीली मूव करता है, दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज बेसिकली नोन एज अ if we only allow the structure to remain or to move in only one direction, that thing is basically known as a single degree of freedom system. उसको हमने डिस्कस किया. उसके बाद सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट किया, इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़े, और डैम्प्ड कंडीशन के अंदर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम किस तरह से काम करता है, अंडर नॉर्मल लोडिंग किस तरह से काम करता है, एंड अंडर हार्मोनिक लोडिंग किस तरह से काम करता है. हार्मोनिक लोडिंग बेसिकली इज टू एंड फ्रो मोशंस, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब आपका अर्थक्वेक आता है तो हार्मोनिक लोडिंग ही एक्ट कर रही होती है इन रियल इंडस्ट्री, इन रियलिटी बेसिकली. तो हमने जब हार्मोनिक लोडिंग को कंसीडर किया तो उसके अंदर जो है वो हमने मास स्प्रिंग सिस्टम को आइडियलाइज स्ट्रक्चर के तौर पे कंसीडर किया, और हमने उसके डिफरेंट वेरिएशंस या डिफरेंट जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, वो हमने ट्राई किए. और उन्हीं इक्वेशंस को हमने यूज़ करके उसके बाद जो अदर पैरामीटर्स थे, फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया, उसके बाद जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो पीरियोडिक फ्रीक्वेंसीज वगैरह आती हैं वो हमने किस तरह से कैलकुलेट किए, टाइम पीरियड और ड्यूरेशन हमारा किस तरह से अफेक्ट होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की.
उसके बाद हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बाय यूजिंग अ बैंडविड्थ मेथड भी हमने डिस्कस किया कि डायरेक्टली हाउ वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स अवेलेबल, और उनसे हम किस तरह से जो है वो एस्टिमेट करते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऑब्टेन करने के लिए और पीरियोडिक टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। सो इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एडवांस पार्ट ऑफ आफ्टर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम वी हैव अ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कि जब आपके पास एक मेगा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ह्यूज डायमेंशन का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, 4 स्टोरी 5 स्टोरी 8 स्टोरी 10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो कितने पॉसिबल वेज हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है वो उन वेज के अंदर कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम जनरेट करता है। सो उसके लिए हम उसको कंपेयर भी करेंगे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, हाउ इट्स कनेक्टेड विद द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और उसके लिए हम डेरिवेशंस को फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशंस टू आइडेंटिफाई द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था, हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन एक को सॉल्व करना हमारे लिए आसान था। लेकिन यहाँ पे जब एक हम बल्क क्वांटिटी के अंदर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स की बात करते हैं या मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स की बात करते हैं, तो जितने आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है उतने ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस जनरेट होती हैं। और जब इक्वेशंस डिफरेंट आपके पास या बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उस केस के अंदर उनको सॉल्व करना ईजी नहीं रहता या बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उस केस के लिए हम क्या करते हैं, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करके मैट्रिक्स फार्मूलेट करते हैं। मैट्रिसेस को फार्मूलेट करने के बाद हम उनको इजीली मैट्रिक्स के जरिए से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज जो है वो हम एक मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम यानी एक मेगा स्ट्रक्चर कंसीडर करके हाउ वी डिफरेंशिएट और हाउ वी ड्राइव द इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर दैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन केस ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स, और उसको हम किस तरह से उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्मुलेट करने में या मैट्रिक्स को बनाने में किस तरह से उन इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं। These are very very important things to understand because आज जो है वो हमने डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी है इन द केस ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और अपकमिंग लेक्चर के अंदर जो है वो हमने एक मेगा स्ट्रक्चर 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग को कम्युलेटिवली एज अ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के हिसाब से हमने एनालाइज भी करना है और उसको हमने फाइंड आउट भी करना है। सो नाउ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये था एक जनरल ओवरव्यू, क्योंकि हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। In that structure is allowed to deform only in one direction, जो कि हमने ऑलरेडी जो है वो हमें डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लासेस के अंदर। अंडर नॉर्मल लोडिंग भी हमने डिस्कस किया, अंडर हार्मोनिक लोडिंग भी डिस्कस किया, अंडर जो है वो डैम्प्ड कंडीशन के अंदर भी डिस्कस किया। सो फॉर दैट सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम वी गॉट ओनली वन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप सिर्फ एक इक्वेशन मिलती है और इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ वन इक्वेशन ओनली। अगर आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बात करते हैं तो इट विल दैट स्ट्रक्चर विल गिव अस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स, या दैट इक्वेशन दैट बेसिकली सिस्टम विल गिव अस 2 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, या डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएंगी, उनको हम इजीली यूज करके उनको हम उससे जो है हम हमारे स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। सो नाउ इफ वी कंसीडर एन n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम, कि हमारे पास एक मल्टी या मेगा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है जनरेट होती हैं, और जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जनरेट होती हैं उतने ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस जनरेट होते हैं। सो इट मींस दैट एज मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हैव वी विल गेट एन इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशंस, कि जितनी आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम है उतने ही आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन जनरेट होते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जितने जनरेट होते हैं उतना ही ज़्यादा सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इवन ये तो हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम है, उस केस के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है वो ड्राइव करते हैं। अगर हम उसके साथ डैम्पिंग को ऐड करते हैं तो हमारे पास सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम है एंड हमने n नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। सो इफ वी हैड ओनली 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस और 1 डिफरेंशियल इक्वेशन, इट वाज ईजियर टू सॉल्व दैट। But if we have n number of differential equations, it will be very difficult to solve. तो हमारे पास बहुत ही एक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर हम सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने बताया कि हम डैम्पिंग को कंसीडर करते हैं, तो हमारा सिस्टम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। So for the solution purposes, in the case of multi-degree of freedom system, we always go for the matrices form, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स को डेवलप करते हैं और मैट्रिक्स से जो है वो हम इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या सॉल्व करते हैं।
अब हमारे पास लेट्स सपोज अज्यूम करें कि इन मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम वी आर कंसीडरिंग अ मेगा स्ट्रक्चर, एक हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ माइंड में बिठाएं कि अगर हम 3 स्टोरी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जनरेट होता है। अगर हम 8 स्टोरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम जनरेट होता है। यानी जितने आपके पास स्टोरीज हैं बिल्डिंग्स के अंदर उतनी ही आपके पास चांसेस होती हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम बनने के। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव एन n नंबर ऑफ बिल्डिंग, n नंबर ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, कि आपके पास एक बिल्डिंग है जिसका आपको कोई पता नहीं है कि ये कितनी बिल्डिंग जो है वो नंबर ऑफ स्टोरीज इसके अंदर कितनी है। तो उसके लिए हमने क्या अज्यूम किया कि लेट्स सपोज वी हैड हियर कि ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम है या n नंबर ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम्स हैं। अब जब नंबर ऑफ स्टोरीज या नंबर ऑफ बिल्डिंग जो है वो हमारे पास बढ़ जाती है, 3 स्टोरी 4 स्टोरी 5 स्टोरी 7 स्टोरी, इसी हिसाब से जो है वो हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो भी बढ़ते जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर n मास स्प्रिंग सिस्टम, कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम है, हमें कोई आइडिया नहीं है कितने नंबर हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं n नंबर ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम से। इट मीन्स द सिस्टम व्हिच कंटेन्स n नंबर ऑफ मासेस एंड n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, कि मास स्प्रिंग सिस्टम हम कम्युलेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। तो जितने आपके पास स्टोरीज हैं बिल्डिंग की उतने ही आपके पास मासेस हैं और उतने ही आपके पास स्प्रिंग डैम्पर्स हैं या स्प्रिंग्स कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनको हम जो है वो मास स्प्रिंग डैम्पर के तौर पे ट्रीट करते हैं। सो इन जनरल ये हमारे पास हमने एक इक्वेशन या हमने जो है वो एक बिल्डिंग का जस्ट एक डेमोलिशन या जस्ट एक हमने जो है वो एक सिंपल जो है वो मॉडल डेवलप किया जिसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टोरीज हैं और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 1 स्टोरी थी उसका मास जो है वो m1 से हम शो करा रहे हैं और सेकंड स्टोरी जो है वो मास m2 है, थर्ड स्टोरी मास m3 और इसी तरह से हमने इसको कंटिन्यू किया। ये आपके बीच में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, किसी डैम्पिंग को या विस्कस डैम्पर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जितनी स्टोरीज थी उन स्टोरीज के अंदर हमने उनको मासेस से रिप्रेजेंट करा दिया, स्टोरी 1 मास 1, स्टोरी 2 मास 2, स्टोरी 3 मास 3 और इसी तरह से हमारे पास जो है वो स्टोरी आ गई mn-1 मास n-1 स्टोरीज और यहाँ पे हमारे पास mn आ गया नंबर ऑफ स्टोरीज जितनी आपको मासेस अवेलेबल है। अब यहाँ पे mn सिस्टम आ गया और जहाँ पे हमने स्प्रिंग कांस्टेंट यूज किया था वहाँ पे हमने स्प्रिंग का जो स्टिफनेस होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, k से। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स ज्यादा थे, इस वजह से हमने इसको रिप्रेजेंट कराया k1 फॉर मास 1, यानी कि नंबर 1 जो स्टोरी थी या स्प्रिंग था उसके लिए हमारे पास k1 जो है